آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسی موبائل ایپ جس سے آپ ویڈیو ایڈیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس ایپ کو یوز کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو کسی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ بآسانی موبائل سے اپنی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایپ اوپن کریں گے آپ کو 3 آپشن سامنے نظر آئیں گے۔ ویڈیو پہ کلک کر کے آپ نیو پہ کلک کر دیں۔ اب آپ کو فوٹو اور ویڈیو 2 آپشن شو ہوں گے، جس میں آپ فوٹو کو ایڈٹ کر کے ویڈیو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ویڈیو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ویڈیو میں اپنی پسند کی چیزیں ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنے فوٹوز میں VFX ڈال سکتے ہیں، ویڈیوز میں VFX ڈال سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں، آڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں، ویڈیو کو موو کرا سکتے ہیں۔ جی تو آپ کو بتانے کے لیے میں ایک ویڈیو سلیکٹ کر لیتا ہوں جس کو ہم ایڈٹ کریں گے۔ جی تو یہ آ گئی ہماری ویڈیو۔ جی یہ ملتان جلسے کی ویڈیو ہے جو عمران خان نے حال ہی میں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے کینوس کو سیٹ کریں گے کہ ہمارا فریم کون سا ہو۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اس میں تقریباً سارے ہی ایڈ ہیں پڑے، جو فریم آپ کو چاہیے اس پہ کلک کریں گے۔ میں موبائل سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس لیے میں ٹک ٹاک یعنی 9:16 رکھوں گا۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا میوزک یعنی کہ ہماری آڈیو۔ اس میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی: میوزک، ایفیکٹ، ریکارڈ۔ آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، میوزک لگا سکتے ہیں، ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اس میں۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میوزک میں ہم مائی میوزک سے جو پلے لسٹ ہے اس میں سے لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ویڈیو سے بھی آڈیو نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ سے ہم اپنی وائس چینج کر سکتے ہیں، سیٹ کر سکتے ہیں، اور جیسے چاہیں ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ریکارڈ کردہ وائس کو ایفیکٹ لگا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف ایفیکٹ ہیں، پاپولر ہے، بیل ہے، بہت سارے ایفیکٹ ہیں جو ہم چینج کر سکتے ہیں ہماری آواز کو، اور وائس کوالٹی بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سٹیکرز میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، فائر ہے، آئیز ہیں، اور دوسرے بہت سارے ایموجیز ہیں۔ آپ اس میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ایموجیز جتنے چاہیں۔ اور سٹیکرز میں ہمارے پاس ٹیکسٹ کا آپشن بھی ہے، ہم یہاں پہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، اس کے ایفیکٹ لگا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے فونٹس بھی چینج کر سکتے ہیں۔ کلرز کے بہت سارے آپشن دیے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، بلیک کر لیں، وائٹ کر لیں، ریڈ کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ اس کو ایفیکٹ لگانے کے بعد، اس کا کلر چینج کرنے کے بعد آپ اس کی لینتھ زیادہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اس کی لینتھ بھی کام کر سکتے ہیں جتنا چاہیں، اور اس کو کی فریم بھی لگا سکتے ہیں، یعنی کہاں پہ آپ نے ورڈنگ لے جانی ہے، کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے۔ اور اس میں تیسرا آپشن ہے موسیقی کا، جو سب سے مین اور اہم آپشن ہے۔ اس سے آپ کسی بھی جگہ کو جو انوانٹڈ ہو آپ اس کو بلر کر سکتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا ٹیکسٹ میں جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے فاؤنڈ ہیں، اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں، جیسے میں اب لکھ رہا ہوں یہ PTI جلسہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں، اس کا شیڈ چینج کر سکتے ہیں، اس کے اسٹروک کو چینج کر سکتے ہیں، اس کا ایریا بڑھا سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، جتنی جگہ پہ ہم نے دکھانا ہے اتنا ایریا کر سکتے ہیں، جتنے منٹ سیکنڈ اس کو چلانا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے فلٹر۔ جی فلٹر میں آتی ہیں 3 چیزیں: ایفیکٹ، فلٹر اور ایڈجسٹمنٹ۔ ایفیکٹس میں بہت سارے ایفیکٹ دیے ہوئے ہیں، جیسے سلو زوم ہے، جم زوم ہے۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں جو پرو بھی ہیں، ہم ان کی ریڈیشن
ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और बहुत से प्रो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। जिनके पास प्रो है वो तो सुपर है, लेकिन नहीं है तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर प्रो की। इसमें जितने ऑप्शन हैं आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रो वाले जो हैं वो प्रो एडिशन में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे रेगुलर हैं बहुत सारे दिए हुए हैं, फोकस, जूम, रेट्रो 2, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस को चेंज कर सकते हैं, उनकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट है, बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट हैं जिससे आप वीडियो को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो जितनी वीडियो बने बहुत अच्छी बने। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, स्टोरी पे लगानी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी सेटिंग में इस्तेमाल करके सेट कर सकते हैं। और याद रहे कि प्रो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसमें बहुत सी ऐसी सेटिंग हैं जो इसके प्रो के बगैर भी आपको चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी वीडियो को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है पिप। इसमें आप बहुत से ऐसे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, दूसरे क्लिप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्रोमा का ऑप्शन भी बहुत बेस्ट है। मैं आपको क्रोमा का ऑप्शन करके दिखाता हूँ कि कोई भी ग्रीन स्क्रीन, उसको हमने ग्रीन स्क्रीन को सेट करना हो, जैसे हमारा लोगो बना होता है, मोनो बना होता है, जैसे हमारी वीडियोस थंबनेल की वीडियोस, ज़्यादातर आपको यूट्यूब में भी ऐसे थंबनेल बने हुए मिल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, या ख़ुद भी आप थंबनेल बना सकते हैं। उनको ग्रीन स्क्रीन लगा के यहाँ आके आप ग्रीन स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। इसमें जाएं, उसके पीओपी में जाकर उसमें आप जाएं क्रोमा के ऑप्शन पे, क्रोमा उसको ओके करें, उसमें से कलर चूज़ करें और उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपकी ग्रीन स्क्रीन हट जाएगी। जैसे हम वीडियो बना के पीछे ग्रीन स्क्रीन, वीडियो के पीछे भी ग्रीन स्क्रीन रख सकते हैं, जिस तरह हम थंबनेल के पीछे रख सकते हैं, वैसे ही हम वीडियो बना के अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। पूरी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। और ग्रीन स्क्रीन चेंज करने के बाद आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, जिस तरह चाहें आप लगा सकते हैं जी। तो इसके बाद हमारा आता है प्री कट का ऑप्शन। प्री कट में आप जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ट्रिम पाथ, यानी कि हमने जैसे ही छोटी करनी हो अपनी वीडियो को, क्लिप काटना हो कोई, जहाँ से जहाँ तक हमें पसंद हो उतना क्लिप काट सकते हैं। उसके बाद उसको काटने के बाद उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन आएगा कट का। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक या 2 मुख्तलिफ हिस्सों को हम कट करके उनको जोड़ सकते हैं और अपनी वीडियो को क्लोज और जितनी जहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए ज़रूरी हो उस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये अब मैंने छोटी 2 हिस्सों में कट कर दी है, आपने देखा कि एक ही वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसी तरह ही स्प्लिट का ऑप्शन होता है और आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। जहाँ से जहाँ तक आपको रखना है या जहाँ से जहाँ तक आपको उन हिस्सों को सेट करना है, या किसी भी हिस्से को, वीडियो में से किसी भी हिस्से को आप स्प्लिट की मदद से काट भी सकते हैं और उसको आगे पीछे भी लगा सकते हैं। दोनों हिस्सों को काट के जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कम जितना आपको चाहिए उतना सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जी डिलीट का आपका पता है। बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। बैकग्राउंड में हम जैसे ही ये साइडें आपको वाइट नज़र आ रही हैं, इनको मैंने ब्लैक कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम इसको रेड कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, जितने भी कलर हैं कलर दे सकते हैं। ऊपर ब्लर का ऑप्शन है, ब्लर भी कर सकते हैं और नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, उनके ग्रेडियंट भी साइडों पे लगा सकते हैं। पैटर्न भी दे सकते हैं जैसे आप चाहें। इसमें हर ऑप्शन है। जैसे ही आप अपनी वीडियो को क्लोज करके जितना चाहें ज़्यादा इनको बढ़ा सकते हैं, कलर को कम से कर सकते हैं, ब्लर को ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इन सब को क्लोज करने के बाद अब हम आते हैं स्पीड पे। जैसे आपको पता है कि स्पीड से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी स्पीड ही होगी, ऑडियो की स्पीड, वीडियो की स्पीड,
स्पीड से हम इसकी स्पीड ज़्यादा और कम कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम अपने क्लिप की स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 2.80 हो गया तो ये बहुत तेज़ चलेगी वीडियो। अब हम इसको ओके करेंगे, उसके बाद एडजस्ट करके देखेंगे। ओरिजिनल इसकी 1.0 है। उसके बाद जितना भी ज़्यादा करते जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, जितना कम करते जाएंगे आपकी स्पीड, आपका क्लिप बिल्कुल स्लो चलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। हम इसको ओके कर देते हैं इसकी नॉर्मल स्पीड पे। अब आपको बिल्कुल नॉर्मल नज़र आएगी। उसके बाद हम जैसे ही इसका अगला हिस्सा है कर्व में हम देखेंगे कि जैसे ही हम इसको कर्व करते हैं हमारी स्पीड कम, अभी नॉर्मल है, कम ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आप कर्व करके इसको स्लोमो और दूसरी चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है जी क्रॉपिंग। आपको पता है कि किसी भी क्लिप को फ्रेम देना हो या उसको क्रॉप करना हो, क्रॉपिंग फ्रेम की तरह है। ये हमें 1.1 देना हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने फ्रेम कौन से सेट करने हैं और कैसे सेट करने हैं। ये देख लें, वैसे ही फ्रेम खड़े हैं। इसमें हम अगर हमने अदरवाइज़ भी एडजस्ट करनी हो तो हम फ्रेम पे जाके इसको क्लोज भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी वॉल्यूम। आप ऑडियो निकाल सकते हैं, अपने वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें से वीडियो में से वॉल्यूम को यानी ऑडियो ट्रैक को अलहदा भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जितना आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो में से ऑडियो को निकाल सकते हैं जैसा हम चाहें। ये आपके सामने है। अभी मैं ऑडियो अलहदा कर दिया है मैंने वीडियो से। अब वीडियो बिल्कुल खाली है, आप इस पर एडजस्ट भी कर सकते हैं ऑडियो को। और यही ऑडियो जैसे ही आप इसकी ऑडियो यूज़ करेंगे अलहदा तो फिर आप इस पर वॉइस इफ़ेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी ऑडियो अलहदा नहीं होगी, वीडियो के साथ होगी, तो इसके वॉइस इफ़ेक्ट लगा सकते हैं आप इस पर। देखिए अभी कोई ऑडियो इफ़ेक्ट काम नहीं कर रहा। जैसे ही हम आप इसको वापस करेंगे, दोनों ऑडियो वीडियो मैंने इकट्ठी कर दिए हैं। अब आप इसका वॉइस इफ़ेक्ट जितने चाहें चेंज कर सकते हैं। बहुत से करैक्टर दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिए हुए हैं, अलहदा सबकी वॉइस हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये हमारा आता है रिप्लेसमेंट। हम इस क्लिप को जैसे चाहें रिप्लेस कर सकते हैं, यानी पहले वाला क्लिप ख़त्म करके रिप्लेस पे दूसरा आ जाए। हमने वही क्लिप यूज़ करने हैं, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको रिप्लेस नहीं कर रहा। उसके बाद आता है डुप्लीकेट। सबको पता है कि डबल हो सकता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर है। उसके बाद आता है जी रिवर्स। आप किसी भी वीडियो को रिवर्स भी चला सकते हैं। सेटिंग में आपकी वीडियो आगे जा रही होगी लेकिन वीडियो रिवर्स हो रही होगी। जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे ये रिवर्टिंग हो रही है, पहले आपसे टाइम मांगेगा, उसको रिवर्ट करेगा पूरी वीडियो को। रिवर्ट होने के बाद आपको शो होगी। ये देख लें हमारा क्लिप रिवर्ट हो गया है जी। ये देखें जी चल रहा है, ये आगे से पीछे की तरफ आ रहा है जी। हमारा ये पूरा क्लिप पीछे हो गया है, अब रिवर्ट की तरफ पीछे की तरफ आ रहा है। सीधा ही आप देख रहे हैं कि रैली उल्टी चल रही है। इसके बाद ये हमारा आता है, इसको क्लोज़ करने के बाद हमारा आता है रोटेट का सबको पता है कि आपने रोटेट करके वीडियो को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है जी फ्लिप में आप देखेंगे कि साइड को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस साइड से कोई शो हो रहा है तो फ्लिप में आपको दूसरी साइड से शो होगा। दोनों तरफ से आप अपने क्लिप को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको इधर वाला मूड इधर दिखाई देगा और इधर वाले लोग इधर दिखाई देंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे जहाँ पे उनकी लोकेशन होगी। और उसके बाद आता है फ्रीज़। किसी भी वीडियो में कोई क्लिप आपको एक जगह पे रोकना है या कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई फ़ोटो की तरह लगाना है, कोई वीडियो रुक जाए या उसमें स्लोमो आ जाए या बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए, तो ये है हमारा फ्रीज़। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी।